وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس میں صوبائی وزیر اظفر علی ناصر، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کی شرکت، سیکریٹریز ہاؤسنگ، فائنانس، ٹرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ کے افسران نے شرکت کی۔ CNW، اوقاف، CBD، رنگ روڈ اتھارٹی، ٹیپاز، سول ایویشن کے حکام بھی شریک۔ چیف سیکریٹری پنجاب ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں اہم اجلاس، اور اجلاس میں لاہور کے اندر جو جاری ترقیاتی منصوبہ جات ہیں اس پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ سب سے پہلے تو CBD کے جو مختلف پروجیکٹس جاری ہیں، جس میں کلمہ چوک انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی، اور ساتھ ہی والٹن روڈ والی سائڈ کے اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور کینٹ میں مختلف جو پروجیکٹس ہیں جو کہ زیر التواء ہیں ان کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو باقاعدہ بریف کیا گیا، اور ساتھ ہی اسپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ، بی بی پاک دامن منصوبہ، جو ان کی دربار کی ایکسٹینشن کا منصوبہ جو ہے جاری ہے اور کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے بریفنگ دی گئی، اور ساتھ ہی لاہور کے اندر مختلف روڈز جن کے تعمیر و مرمت کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور LDA کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو بریف کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی آج نگران حکومت کو باقاعدہ طور پر تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، اور سمن آباد انڈر پاس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کا ایک ٹائم مقرر تھا، لیکن اس مقرر کردہ وقت کے اندر اس منصوبے کو مکمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا، تو اس پر انہوں نے غیر ان پر مطمئن جو ہے وہ نہیں دکھائی دیے۔ اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح طور پر ہدایت دی کہ جہاں جہاں پہ جو بھی ترقیاتی منصوبہ جات جاری ہیں اور جو ان کا گیسٹیشن پیریڈ ہے اسی کے اندر اس کو مکمل جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ جو عوامی فلاح کے منصوبے بر وقت مکمل ہو، اور جو شہریوں کو اذیت کا سامنا ہے ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے اس کو دور کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان ریلوے کا 1 مئی سے کرایوں میں کمی کا اعلان۔ کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کا کرایہ کم کیا جائے گا۔ شالیمار ایکسپریس کے تمام کلاسوں میں 20% تک کی رعایت دی جائے گی، جبکہ 1 سے 15 مئی تک مسافروں کو ٹکٹوں پر رعایت ملے گی۔ 15 سے 30 مئی تک شالیمار ایکسپریس کی کلاسوں میں 10% رعایت دی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل محکمہ ریلوے کی جانب سے یہ اہم کام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ریلوے کے مسافروں کو، وہ مسافر جو کہ شالیمار ایکسپریس میں سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ طویل عرصے کے بعد، تقریباً 8 ماہ کی بندش کے بعد جو ہے وہ شالیمار ایکسپریس 1 مئی سے دوبارہ سے چلنا شروع ہوگی، اور اس کے لیے جو بکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان مسافروں کو 1 مہینے کے لیے تقریباً جو 20% ڈسکاؤنٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے کرائے کی مد میں۔ پاکستان ریلوے نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 مئی 2023 سے لے کر تقریباً 15 مئی 2023 تک جو افراد ٹکٹ بک کروائیں گے شالیمار ایکسپریس کا، انہیں 20% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، جبکہ 16 مئی 2023 سے لے کر تقریباً 30 مئی 2023 تک جو افراد شالیمار ایکسپریس کی ٹکٹ بک کروائیں گے انہیں 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ 1 مہینے کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا ہے ایکسپریس کے حوالے سے۔ جی ٹھیک ہے عادیہ ناز، آپ کا بہت شکریہ۔ شدید ترین مہنگائی سے سبھی پریشان، شہری سستے آٹے کی تلاش میں خوار۔ اوپر مارکیٹ کے بعد درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے آٹے کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ شدید ترین مہنگائی سے سب ہی پریشان، شہر کی اوپن مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور میں بھی سستے آٹے کے بحران نے شدت اختیار کر لی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر دھرمپورہ، الطاف کالونی، ہربنسپورہ، نظام آباد، فتح گڑھ سمیت دیگر علاقوں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا دستیاب ہی نہیں۔ شہری سستا آٹا نہ ملنے کے باعث پریشان نظر آئے۔ نہیں ملتا، ہم آ کے پتہ کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں آٹا نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کب آئے گا کب نہیں۔ آٹے کے لیے اکثر آتے ہیں، قلت ہوتی ہے، نہیں ملتا، شارٹی جو ہوتے کہتے ہیں انتظار کرو جب آئے گا لے لینا۔ ہم کنفرم ٹائم نہیں بتا سکتے کہ اس ٹائم آپ کو مل جائے گا، تو لہٰذا بس دقت ہوتی ہے۔ شہریوں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کریانہ دکانوں، جنرل سٹورز کے بعد اب یوٹیلیٹی سٹور بھی سستے آٹے سے خالی پڑے ہیں۔ گندم بہت مہنگی ہے، اتنی مہنگی گندم خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ حکومت یوٹیلیٹی سٹور پر سستا آٹا فراہم کرے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ گلی محلوں میں سب کی دکانوں پہ آٹا موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں آٹا موجود نہیں ہوتا، اس لیے بہت قلت ہے۔ تو برائے مہربانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ گلی محلوں دکانوں میں آٹا اویلیبل کریں۔ شہریوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں تو مفت آٹا پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی کی جاتی رہی، اب آٹا پوائنٹس ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور پر سستا آٹا دستیاب نہیں تو آٹا کہاں جا رہا ہے؟ کیمرہ مین سلمان علی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन के मुकदमे की समाअत, सरकारी वकील की मजीद दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने दरख्वास्त अबूरी जमानत की समाअत की। मुलजम परवेज़ इलाही पेश हुए। मुलजम के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि गैर मुल्की कंपनी को अरबों रुपए की वाजबात की अदायगी के लिए रिश्वत वसूली का इल्ज़ाम है। ये अदायगी चीफ मिनिस्टर ने नहीं बल्कि पंजाब काबीना ने की थी। अबूरी जमानत कन्फर्म की जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजम परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और जुबैर खान के जरिए 6 करोड़ मोनिस इलाही ने 5 करोड़ रिश्वत वसूल की। सरकारी वकील ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर एतराज उठाया और कहा कि परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन की बराह रास्त सबूत मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो जब इक़्तिदार में थे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक भी केस नहीं बनाया। हर एक आदमी की अपनी ख्वाहिश है। कोई लोग अपनी ख्वाहिशें ना होने से गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, कोई लोग जो हैं वो सब्र शुक्र कर लेते हैं। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला सुना दिया जाएगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म को एतमाद के 180 वोटों के साथ कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कामयाबी जाहिर करती है कि अवाम वज़ीर आज़म के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली में मौजूदा हालात में नागज़ीर मसाइल पर बातचीत हो रही है। अदली और पार्लिमान के दरमियान तसादुम का तासुर देने वाले मुल्क के लिए नुकसान का बायस हैं। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मनफी प्रोपेगेंडा चलाने वालों को निशान इबरत बनाए। निगरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की LDA ऑफिस आमद। 1 विंडो सेल में कायम सेंटर सिटीजन सेंटर का दौरा किया, जबकि सूबाई वज़ीर ने पार्किंग प्लाजों में खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासर के बाद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ माफिया के गिर्द भी घेरा तंग करने का इंदिया दे दिया। DGLD मोहम्मद अली रंधावा ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने शिकायत के अजाले के लिए 1 विंडो सेल में खुसूसी काउंटर कायम करने की हिदायत की। असफर अली नासिर ने शहरियों की शिकायत सुनी, अफसरान को हल की हिदायत दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान की खैर नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए, कार पार्किंग को खोला जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, इन्वायरमेंटल और माहौलियात के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। इन चीज़ों के बगैर, इंक्रोचमेंट्स हटाए बगैर, पार्किंग मुहैया किए बगैर ये एक्शंस नहीं किए जा सकते। सिर्फ प्लांटेशन ऑफ ट्री से, ब्यूटिफिकेशन करने से शहर का माहौल अच्छा नहीं होता। कमिश्नर DGLD मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अब वही अफसर काम करेगा जो परफॉर्म करेगा, बाकी तादीबी कार्रवाई का इंतजार करें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, PHA है, ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस है, इन सब को अंडर वन रूफ बुला के इनको हमने सिंक किया। इनकी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो हमारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगी और इसके अंदर LDA तो अपने मॉडल रोड्स को कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे इलीगल पार्किंग हो रही है। LDA में करप्शन और करप्ट अफसरान की मौजूदगी के चर्चे तो आम है। देखना यह है कि निगरान हुकूमत शहर को तजावुज़ात से पाक करके इस माफिया को लगाम डालने में कामयाब होगी या नहीं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को की वाजिबात और बिलों की रिकवरी पर नाकिस कारकर्दगी का मामला संगीन हो गया। अफसरान की बार बार तब्दीली नाकिस रिकवरी का बायस बनी। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, जबकि वजारत पावर डिवीजन ने अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। एक्सियन और SDOs के तबादलों पर पाबंदी आयद की गई है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने नाकिस कारकर्दगी पर पाबंदी आयद की है। मजीद अहवाल जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदा सार्फिन से वाजबात और बिलों की रिकवरी का मामला अब संगीन होता दिखाई दे रहा है, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से नोटिस लिया गया है और एक्सियंस और SDOs के तबादलों पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से वजारत पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी पावर डिवीजन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था, जिसमें लेस्को की नाकिस कारकर्दगी जो है उसकी वजूहात की निशानदेही की गई। जिसे लेस्को ऑफिसर्स की जानिब से बताया गया था कि जो अफसरान हैं उनके जो तबादले हैं वो इस एक बुनियादी वजह, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने पाबंदी आयद की और साथ में 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड या इंतजामी अमूर की बुनियाद पर किसी ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है तो 3 रुकनी कमेटी के पास भिजवाया जाए और वो वजारत पावर डिवीजन की कमेटी अगर उसकी मंजूरी देती है तो अफसरान को तब्दील किया जाए। लेकिन अदरवाइज जून तक किसी भी ऑफिसर को तब्दील करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन लेस्को को भिजवा दिया गया है। जी
बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है। शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस में नए रैंक्स लगाने की तकरीब में एसपी सिक्योरिटी समेत दीगर अफसरान और अहलकारों की शिरकत। डीआईजी ऑपरेशंस ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को रैंक्स लगाए। तरक्की पाने वालों में डीआईजी ऑफिस के मियां असलम और इदरीस अहमद शामिल हैं, जबकि ऑफिसर या अहलकार के लिए तरक्की का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। डीआईजी ऑपरेशंस बोले कि अफसरान खिदमत खल्क के जज्बे से मुल्क व कौम की खिदमत करें। साबिक एमपीए चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का पीपी 148 में खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुने। बागबानपुर ऑफिस में लीगी कारकुनान और इलाका मकीनों ने मसाइल से आगाह किया। साबिक एमपीए चौधरी शहबाज अहमद ने हल्का पीपी 148 में खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। बागबानपुर ऑफिस में लीगी कारकुनान और इलाका मकीनों ने मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर आशिक सुलहरी, आरिफ खान, रमज़ान, खुरम मुगल, राना शौकत, राना शहजाद, महर सुल्तान, मोहम्मद जावेद, ताहिर बशीर, मास्टर फयाज समेत दीगर मौजूद थे। चौधरी शहबाज अहमद ने कहा कि सियासी मामलात सियासतदानों को हल करने चाहिए। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का पीपी 149 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दौरे के दौरान कांस्टेबल शहीद नवीद के अहल खाना से इजहार अफसोस किया। मियां शहजाद की वालिदा डॉक्टर आजम के बेटे की वफात पर इजहार ताज़ियत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने साबिक चेयरमैन मास्टर निसार समेत दीगर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें की, जिनमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास यूरोपीय यूनियन 12 मिलियन यूरो इमदाद से लाहौर और फैसलाबाद में इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू करेगी। यूरोपीय एजेंसी से एहसन प्राचा की सरबराही में वफ्द ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। एमडी वासा की ज़ेर सदारत इजलास में बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में यूरोपियन एजेंसी से एहसन प्राचा शरीक हुए। वासा लाहौर से डायरेक्टर अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर प्लानिंग जीशान बिलाल और दीगर भी शरीक थे। यूरोपीय वफ्द ने कहा कि यूरोपियन एजेंसी वासा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और वासा फैसलाबाद की तकनीकी मुआवनत जारी रखेगी। एमडी वासा ने रवां बरस बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे का PC1 जमा करवाने की हदायत भी जारी कर दी हैं। गुफरान अहमद ने प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज़ करने की भी हदायत की है। एमडी वासा का इस हवाले से कहना था कि यूरोपीय एजेंसी की मदद से बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मनसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का क्याम अमल में लाया जा रहा है। मनसूबे से 170 MGD गंदे पानी को ट्रीट करके रावी में डाला जाएगा। माजी की नामवर अदाकारा जमुर्द खान कैंसर में मुब्तला। जमुर्द खान का कैंसर आखिरी स्टेज पर है, डॉक्टर्स ने ला इलाज करार दे दिया। जमुर्द खान ने बेशुमार फिल्मों, ड्रामों और थिएटर पर काम किया। जमुर्द खान के अहले खाना की मदाहों से दुआए सेहत की अपील। मजीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माजी की लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जमुर्द खान जो है वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में जो है वो मुब्तला हो गई हैं और उनकी इस वक्त जो हालत है वो इस कदर शदीद हो गई है कि डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटल से जो है वो घर भेज दिया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब इनका जो मर्ज है वो बहुत हद तक बिगड़ गया है, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें हॉस्पिटल में भी नहीं रखा जा सकता। जो जमुर्द खान के अहले खाना है उन्होंने मद्दाहों से जो है वो दुआए सेहत की अपील की है। जबकि जमुर्द खान के हवाले से बताता चलूं कि उन्होंने नामवर पश्तो फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों, टीवी ड्रामों और स्टेज ड्रामों में भी जो है वो परफॉर्म किया है और एक अरसा तक वो माँ के किरदारों में जो है वो परफॉर्म करती रही और इस वक्त वो इंतहाई कसम पुष्टी की हालत में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। जी ठीक है जैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा अहमद हसान से लेबर विंग नून लीग पंजाब के सदर मुश्ताक हुसैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात 1 मई की तकरीब के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को शबाना रोज़ मेहनत से डिफ़ाल्ट होने से बचाया गया। दोस्त ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात की बिना पर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला गया है। निकाह को आसान और आम करने के लिए आल पाकिस्तान मैरिज कंसल्टेंट्स की जानिब से तहरीके निकाह वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। मुल्क भर में निकाह को आम करने के लिए आगाही मुहिम का ऐलान
کیا गया है। आल पाकिस्तान मैरिज कंसल्टेंट की चेयरपर्सन किरण खान की ज़ेर सदारत मुनक्कदा इजलास में तहरीके निकाह वेलफेयर एसोसिएशन के क़याम का ऐलान किया गया। इस मौके पर सरपरस्त मैरिज कंसल्टेंट आबिद वज़ीर, वाइस चेयरमैन मिसिज़ महमूद, सेक्रेटरी बादशाह खान और दीगर भी मौजूद थे। चेयरपर्सन की जानिब से कहा गया कि तहरीके निकाह शुरू करने का मकसद निकाह को आसान करना है।